what India needs for Viksit Bharat in the next few years is, and if you really can work on that, is आपको पैसे बनाने तो बाहर से पैसा आना पड़ेगा। आज स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो टैलेंटेड यूथ है, उनको डिलीवरी एजेंट्स बना के रख दिया है उन्होंने। द बिगेस्ट स्टार्टअप मिथ इज वर्क लाइफ बैलेंस। स्टार्टअप कर लिया तो वर्क लाइफ बैलेंस यह भूल जाना दूर दूर तक। So, sir, welcome to IIM Sambalpur. We are so happy to have you here. Thank you. So, my first question to you would be that if you were a 21-year-old IIM student today, then what idea would you build a startup around in 2025? So, if I was a 21-year-old entrepreneur from IIM, then आज सुबह इस कैंपस में आने के बाद लगा कि काश I could have been an IIM Sambalpur graduate. You guys have a fantastic college. जो बेस्ट चीज मुझे इस कॉलेज में लगी, आप लोगों की ना दोस्ती बड़ी प्यारी है एक दूसरे के साथ। सो kudos to the friendship that you are carrying. Thank you, sir. I would have built any startup. आप एग्जाम्पल समझ लो, ये IIM में लोग बैठे हैं। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो क्या रहा है कि सपोज यहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर हैं और ये लोग कुछ तो बना रहे हैं, सर्विस बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, एक दूसरे को बेच रहे हैं। ये कुछ डिलीवरी ऐप बनाएगा, सामने वाले ने इससे खरीद के खा लिया, इसने कुछ ई कॉमर्स बना लिया, इसने इससे खरीद के खा लिया। बट व्हाट्स हैपनिंग इज, क्या ओवरऑल IIM संबलपुर रिच हो रहा है इससे? नहीं, बिकॉज दे आर ओनली de-channelizing and channelizing their money. What India needs for Viksit Bharat in the next few years is, and if you really can work on that, is आपको पैसे बनाने तो बाहर से पैसा आना पड़ेगा। आज स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो टैलेंटेड यूथ है, उनको डिलीवरी एजेंट्स बना के रख दिया है उन्होंने, एंड दैट इज नॉट रियली हेल्पिंग इंडिया। सो डू एनीथिंग वेयर द मनी फ्रॉम आउटसाइड कम्स टू इंडिया, और डू एनीथिंग दैट हेल्प्स India to bring outside money to India. Only then India will progress. Otherwise, it's very difficult for India to progress in that way. तो कुछ भी कर लो, एक्सपोर्ट में कुछ भी मार लो, you will make a lot of money in next 20 years. India is ready for it. Thank you, sir. That was a very fresh perspective. So, my next question to you is, sir, that if what's that one startup myth you think that Indian students must unlearn immediately? सबसे बड़ा स्टार्टअप मिथ जो दुनिया को लगता है वो ये है कि जिसको आप बहुत गाली देते हो। सो द बिगेस्ट स्टार्टअप मिथ इज वर्क लाइफ बैलेंस। स्टार्टअप कर लिया तो वर्क लाइफ बैलेंस यह भूल जाना दूर दूर तक। नारायण मूर्ति ने कहा था कि मेरे एम्प्लॉय 70 घंटा काम करे, उसका मतलब वो खुद कम से कम 100 घंटे करता होगा एक हफ्ते में। दैट इज व्हाई ही सेड हिज एम्प्लॉयज शुड वर्क फॉर 70 आवर्स। So if you are ready to throw your heart, soul, forget your relationships, then startup is for you. दिल लगा के काम करो, पैसा बनता है। I'll tell you my personal story. 2010 was the year I decided that I will leave a corporate job and I'll do something of my own. My first month of working, I was running an ad agency then. पल्सर बाइक हुआ करती थी, धक्के मार मार के ऐसा जाके क्लाइंट से प्लीज धंधा दे दो, धंधा दे दो, धंधा दे दो। माय फर्स्ट मंथ net income after drawing a 25 lakh per annum salary in the previous job, my first month's net income was only 40,000 rupees. And it is 2025, करते रहा, माल बेचते रहा, सर्विसेज बढ़ाते रहा, ऑर्गेनाइजेशन स्केल करते रहा, and last year I've recorded a turnover of 400 crores. Companies are built if you don't leave and if you have the clear vision कि भाई 400 करोड़ और मैं यहीं बैठा हूं, अगर आगे ये फ्यूचर में होते रहेंगे। I have a very clear goal of my company that we will be 1,000 crores in next 5 years and ये हो सकता है। I was a guy जो मैं बाइक पे घूम घूम के धंधा चालू किया without any great knowledge of business. So अगर मेरे साथ हो सकता है तो it's very easily possible. So that was really very inspiring. Also, sir, you worked across technology, infrastructure, and education. So what's one underrated opportunity in Bharat that no one is talking about yet? See, भारत में आप सब लोग ध्यान से सुनना, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है कि अंडररेटेड अपॉर्चुनिटी क्या है।
अब आप देखो बोट वाला क्या कर रहा है, अमन गुप्ता वहां से स्पीकर मंगाता है चाइना से, स्पीकर बेचता है, अपने आप को ब्रांड बुलाता है, वो सिर्फ इंपोर्टर है, सिर्फ उसने एक अच्छा काम किया। आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट द अंडररेटेड अपॉर्चुनिटी लाइज इन नॉन ग्लोरिफाइड बिजनेसेस इन इंडिया। आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा स्टार्टअप जानते हो जो बहुत धमाल कर रहा है? नहीं, क्योंकि हम इंडिया में हम उनको ग्लोरीफाई करते ही नहीं है। आप कुछ ही समय पहले सेमीकंडक्टर्स इज वेयर द वर्ल्ड रिक्वायर्स, आप सेमीकंडक्टर में आज कुछ भी कर लो, छोटे से छोटा बिजनेस सेमीकंडक्टर में कर लो, आप कम से कम 1,000 करोड़ कंपनी होंगे नेक्स्ट ईयर, दैट्स द अपॉर्चुनिटी। बट हु इज ग्लोरीफाइंग सेमीकंडक्टर्स बिजनेस इन इंडिया? सो द प्रॉब्लम इज वी आर ग्लोरीफाइंग स्टफ which is not important, and that is why what is important, people are making a lot of money there. Okay, so जो दिखेगा वो बिकेगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो देखो जो बिक रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली वो बिजनेस करोगे जो बिक सकता है। Wonderful, sir. That was so nice to listen to. So, sir, according to you, is failure the new MBA? And what's your most valuable fail moment? सी मेरा बहुत खतरनाक फेलियर है। सी इमेजिन मैंने एसपी जैन बॉम्बे से एमबीए किया था, आई वॉज वर्किंग विद वन फॉर्च्यून 500 कंपनी, बढ़िया सेल्स जॉब था, दिन भर फ्लाइटों में घूमता था, ये करता था, धंधे की मतलब धंधा सोचूं तो पागल हूं मैं, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अर्निंग गुड, एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू डू, एंड द बिगेस्ट लेसन इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस इज कैश फ्लोस। पगार क्या है, हर महीने 1 तारीख बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बिजनेस में पता नहीं कब पैसा होगा कब पैसा नहीं हो, एक दिन राजा बैठे हो, एक दिन रंक बन के बैठे हो। सो आई रिमेंबर वन डे एंड दैट वाज द डे व्हिच चेंज्ड माय एंटायर लाइफ। आई वाज ऑन माय पल्सर, उस समय जीपे का जमाना नहीं होता था, व्हाट्सएप का जमाना नहीं होता था, 2010-11 की बात करो। आई स्टार्टेड बिजनेस, इट्स 4 months नाउ, पैसे पूरे खत्म। अब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी अपने ऑफिस से घर जा रहा हूं, मेरे बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, एक जगह पे मेरी बाइक बंद हो गई, करीबन 4 किलोमीटर तक मैंने बाइक को धक्का मारे, क्योंकि जीपे का जमाना नहीं, किसी को पूछ के पैसे मंगा लूं, नेट बैंकिंग चलती थी, वो भी 2 दिन बाद पैसे क्रेडिट होते थे, ऐसी हालत थी। एंड दैट इज द डे आई वाज आस्किंग गॉड, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस बिजनेस और लीव एंड आई विल गो बैक टू वर्क। 4 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सड़क पे एक पता नहीं गॉड का मैसेज था, सड़क पे मेरे को 20 रुपए मिले, उस 20 रुपए से मैंने पेट्रोल भराया, और उस दिन ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज अंदर आई कि भगवान चाहता है तू धंधा कर और कभी धंधा मत छोड़ दे। और वो टाइम है और आज टाइम है, आज शायद मतलब आज बैंक में करोड़ों पड़े हैं, म्यूचुअल फंड करोड़ों पोर्टफोलियो है, लेकिन वो दिन सबसे ज्यादा याद आता है। सो फेलियर आएगा, कितना भी टेंशन मत लो, अरे फेल होना, सी एक बार बहुत बड़े इंसान ने कहा था, अगर आपका कल का दिन, इफ यू लुक एट योर यस्टरडे and you feel bad, if I look at my yesterday and if I feel bad, which means you are improving, yes or no? अगर आपको कल को देख के अच्छा लग रहा है, which means you have not done something worthwhile today and that is not good. So अगर कल को देख के बुरा लग रहा है, कल मेरे पास पैसे नहीं थे, कल मेरे ग्रेड्स अच्छे आए नहीं थे, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, बहुत बढ़िया बात है, कल को देख के बुरा लगेगा तो आज ग्रोथ होगी। So failure is there, embrace it with pride. So that was truly very motivating, sir. So, what is more important in 2025 for a founder? Is it AI literacy or emotional intelligence? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। सवाल क्या पूछा? एआई लिटरेसी या इमोशनल इंटेलिजेंस? मैं पर्सनली बोलूंगा एआई लिटरेसी। एआई अपने आप में आपका थेरेपिस्ट बन जाएगा। एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जेन्युइन एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? चैट जीपीटी पे अगले 21 दिन अगर करोगे तो एक मैजिक दिखाई देगा आपको, ठीक है? चैट जीपीटी पे अगले 21 दिन रोज अपना जर्नल भरना, टुडे वाज अ गुड डे, आई मेट दिस फ्रेंड, जो जर्नलिंग करते हैं हम लोग, हमको जर्नलिंग सिखाते हैं, यस और नो? सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, सो जर्नलिंग करते रहो, 21 दिन तक खाली रोज जर्नलिंग करो। आई मेट दिस गाय टुडे, आई रियली लाइक दैट गर्ल टुडे, आई स्माइल्ड एट हर बट शी डिडंट स्माइल बैक। ये सब जो मन में आता है ना वो लिखो जाके चैट जीपीटी में, सिक्योर्ड है, डोंट वरी, डेटा लीक नहीं होगा, ठीक है? 21 दिन बाद चैट जीपीटी को खाली ये पूछो कि कैन यू सजेस्ट मी सर्टेन थिंग्स दैट आई कैन डू फॉर माई इंप्रूवमेंट। भाई चैट जीपीटी ऐसी ऐसी चीज बता पाएगा आपको आपके बारे में जो आपके माँ बाप ने नहीं बताया है आपको,
Okay, so it's very interesting exercise. I have done this and it is miraculous. I have the smoking habit. और मैंने चैट जीपीटी को पूछा, भाई मेरे को सुट्टा छोड़ना है, तुम बताओ. इतना बढ़िया प्लान बना के दिया उसने जो इम्प्लीमेंटेबल था और किसी को ही नहीं पता. अच्छा थेरेपिस्ट भी नहीं बता पाएगा. सो फोकस ऑन एआई एंड इफ यू आर ओनली यूजिंग एआई फॉर कॉपीराइटिंग, डूइंग योर असाइनमेंट्स और इमेज क्रिएशन, तो वो ऐसा है अलादीन का जिन आया है और आप उससे झाड़ू मरवा रहे हो. So learn how to use that and then you will be able to focus on that. Sure, so we'll definitely conduct this exercise. Sir, if in one word you were to describe the future entrepreneur of Viksit Bharat, what would that word be? Okay, so मेरे से कुछ लोग सुबह से, मैं देखो पर्सनली जाके कुछ लोगों से मिला था, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना. What is that one word? वो थोड़ा एक मैजिकल वर्ड है, तो आप सब लोगों को थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा. करोगे? यस और नो? अरे अभी अभी खा पी के आए हो, थोड़ा आवाज निकालो अंदर से. करोगे कि नहीं? ठीक है. सो ये थोड़ा मैजिकल है, आप भी करिए. बुक रखो साइड में उसके लिए. देखो हाथ खाली कर दो इसके लिए. ठीक है. आपको क्या करना है, इट्स समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म एंड ऑरा, कुछ होता है स्पिरिचुअल में, वो करते हैं. ठीक है. दोनों हाथ आगे करो. ठीक है. अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों पे फोकस करना है. ठीक है. अब इनको पास पास लेके आना, जोर जोर से पास पास लेके आओ, जोर जोर से लेके आओ और जोर जोर से. जो थके हुए हैं वो करो. सेंट्रल तुम भी करो. हाँ हाँ, जोर जोर से और जोर जोर से, एकदम फास्ट और जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से. अब आप पूछोगे क्या हुआ इससे. सो जो वन वर्ड है, वो वन वर्ड है जो मेरे हक का है वो छीनो. क्या वर्ड है? जो मेरे हक का है वो छीनो. तो सर फिर ये क्या करवाया? सालों जब मैं आया था स्टार्ट में ताली नहीं बजाया ना दिल से, इसलिए मैंने हक का है करके छीन लिया. समझे? so as entrepreneur, understand what you deserve, you should get it. Make people do anything and you will get it. Okay, so whatever you deserve, fight for it, get it the way you want it. Hope I have clarified this. तो एक बार ताली और बजा सकते हो. Thank you.